further, now we will study about the types of microorganisms कि ये जो microbes हैं, ये जो microorganisms हैं, ये कितने टाइप के होते हैं. So students, they are of different types. For example, these microscopic organisms are first classified as bacteria. Bacteria means the guys who are found everywhere. हर जगह मिलता है bacteria हमको. Next is fungi, protozoa and algae. Now if we talk about virus जो है that is an exception here. Virus को exception में क्यों count करते हैं? See, all the microorganisms are living. अगर हम bacteria, fungi, protozoa and algae की बात करें तो they all are living microorganisms. And if we talk about virus जो है that is a microorganism but it is non-living. It is actually on borderline of living and non-living. What does this mean? वायरस जो है वो सिर्फ लिविंग जो है काउंट होता है वो कब मल्टीप्लाई कर सकता है जब वो होस्ट की बॉडी में एंटर कर जाता है, जब वो किसी की बॉडी में एंटर कर जाता है. वायरस जो है वो कुछ पार्ट ऑफ अपनी मशीनरी जो है वो लैक करता है, इसीलिए जब वो बॉडी से बाहर है वो नॉन लिविंग होता है. ठीक है. एंड व्हेन इट एंटर्स इनटू द बॉडी, जब वो बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है देन इट स्टार्ट्स मल्टीप्लाइंग, तब ये लिविंग में काउंट होता है. सो वायरस आर जनरली कंसीडर्ड एज नॉन लिविंग. एक्चुअली दे आर ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ if we talk about bacteria and virus, so bacteria are living organisms and virus, as I told you, they are considered as non-living organisms. They are only living when they enter into the host body. Next, bacteria are made up of one cell only. One cell, that is they are unicellular. One cell के लिए हम क्या term use करते हैं बच्चों? Unicellular. तो जो बैक्टीरिया है that is unicellular और जो वायरस है उसका कोई सेल जो है वो नहीं होता है. Now if we talk about the mode of reproduction means कि कैसे वो आगे reproduce करते हैं, divide करते हैं, multiply करते हैं. तो जो बैक्टीरिया है it actually reproduces asexually by the process known as fission. Asexually means no two parents are involved. कोई दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है. सिंगल पेरेंट से ही आगे डॉटर सेल्स जो हैं वो बन जाते हैं एंड द प्रोसेस इज फिजन. टॉकिंग अबाउट वायरस reproduce only inside the cells. As I told you कि जब वो बॉडी से बाहर है it is non-living and when it will enter into the host body, जब होस्ट की बॉडी में वो एंटर कर जाएगा only then it will reproduce मतलब वो multiply करेगा अब नंबर में. Next is the infections that are caused by bacteria. See students, there are various infections. So few examples are strep throat, tuberculosis, urinary tract infections. These all are caused by bacteria. And if you talk about virus, so diseases like cold, कफ आपको हो जाता है, सीजनल फ्लू हो जाता है, सो दैट इज कॉज्ड बाय वायरस. दे आर एक्चुअली ड्यू टू वायरस. कोल्ड, पोलियो, इन्फ्लुएंजा एंड कफ, दे ऑल आर कॉज्ड बाय वायरस. सो वी कैन सी दैट बोथ बैक्टीरिया एंड वायरस कैन कॉज डिजीजेस. सो नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस सी few examples of the diseases that are caused by the microorganism protozoa. So protozoa से होने वाली कुछ एक diseases हैं dysentery. The number one is dysentery. Students, dysentery जो है it is basically an intestinal infection. हमारी जो intestines होती हैं उनके अंदर जो है infection हो जाता है dysentery में. Fine. And the next is malaria. Malaria you all know, fever होता है, mosquito bite से होता है malaria. And the next example of protozoan disease is काला अज़र. काला अज़र जो है बच्चों, this is a very deadly disease. ये बहुत deadly disease होती है. जो प्रोटोजोआ होता है it actually enters into spleen or liver of your body. आपकी बॉडी में spleen, liver या बोन मैरो तक जो है ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये एंटर कर जाता है. एंड इफ नॉट ट्रीटेड वेल ऑन टाइम, अगर ये प्रॉपरली वेल ऑन टाइम जो है इसको नहीं इसका ट्रीटमेंट लिया जाता है तो दिस डिजीज रिजल्ट्स इन
death. Now students, I will show you the microscopic images of these microorganisms. माइक्रोस्कोप के नीचे अगर हम इनको देखते हैं तो हमें ये कैसे दिखते हैं. So first is bacteria. You can see the picture of bacteria. ये बहुत छोटे होते हैं students. I am again saying that आप इनको naked eye से नहीं देख सकते हैं. So these are the images. ये वो images हैं जो हमने माइक्रोस्कोप के नीचे जब इन माइक्रोऑर्गेनिजम्स को देखा है तो ये जो स्ट्रक्चर है ये तब हमें विजिबल हुआ है. सो दीज माइक्रोऑर्गेनिजम्स, इफ यू टॉक अबाउट बैक्टीरिया स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया जो है वो डिफरेंट टाइप्स का होता है, डिफरेंट शेप्स का होता है. क्लियर? सो नेक्स्ट इमेज दैट वी आर गोइंग टू सी इज ऑफ एल्गी. एल्गी अगर हम देखें तो हमने यहाँ पे दो इमेजेस शो करी हैं. वन इज ऑफ स्पायरोजाइरा एंड वन इज क्लेमिडोमोनास. अगर आप इन दोनों को देखें ध्यान से तो जो स्पायरोजाइरा है दैट इज अ फिलामेंट, वो एक लंबा स्ट्रक्चर है. और अगर हम क्लेमिडोमोनास को देखें तो उसके अंदर दो फिलामेंट्स जो हैं, इस तरीके से दो फिलामेंट्स जो हैं वो इसकी बॉडी में से जो है निकले हुए हैं. सो दो दे आर हैविंग अ डिफरेंट स्ट्रक्चर, दोनों का स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट है, बट दे आर द एग्जांपल्स ऑफ एल्गे ओनली. नेक्स्ट अगर अब हम देखें, नेक्स्ट माइक्रोस्कोपिक इमेज देखें तो दैट इज ऑफ वायरस. देखो, दिस इज वायरस. नाउ वायरस की जो स्ट्रक्चर है दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम बैक्टीरिया एंड एल्गी दैट वी हैव सीन. नेक्स्ट इज प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ जो है, द एग्जांपल्स ऑफ प्रोटोजोआ दैट वी आर स्टडीइंग हियर इज अमीबा एंड पैरामीशियम. आप इसकी शेप देख सकते हैं. अमीबा जो है स्टूडेंट्स, अमीबा की कोई फिक्स शेप नहीं होती है. क्लियर? सो वी आल्सो यूज द टर्म फॉर समटाइम्स अमीबॉइड शेप. अगर कोई भी ऐसी चीज जिसकी फिक्स शेप नहीं होती है उसके लिए हम अमीबॉइड शेप वर्ड भी जो है वो यूज कर लेते हैं. एंड नेक्स्ट इज पैरामीशियम. नेक्स्ट अगर हम देखें सो फंगी को अगर हम देखें इसके एग्जांपल्स तो वन इज ब्रेड मोल्ड. ब्रेड मोल्ड क्या होता है? आपने कभी देखा होगा स्टूडेंट्स, ब्रेड जो है जब वो स्टेल हो जाती है काफी डेज के लिए अगर वो रखी रहे तो उसके ऊपर फंगस लग जाती है. ठीक है? तो अगर हम उस फंगस को माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो दैट इज वो हमें इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलता है. सो दिस इज ब्रेड मोल्ड. एस्परजिलस का अपना एक डिफरेंट स्ट्रक्चर है. एंड द नेक्स्ट एग्जांपल फॉर फंगी इज पेनिसिलियम. क्लियर?